السلام علیکم۔ کلاس 9 کی اردو ہے، سبق نمبر 5، کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سبق کا مرکزی خیال، خلاصہ اور مشقی سوالات کیے تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم سوال نمبر 3 سے اس کی باقی مشق حل کریں گے۔ درج ذیل نثر پارے کو فہم کے ساتھ پڑھ کر درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیے۔ ماجی کا آبائی وطن تحصیل روپڑ، ضلع انبالہ میں ایک گاؤں منیلا نامی تھا۔ والدین کے پاس چند ایکڑ اراضی تھی، اراضی یعنی زمین تھی۔ ان دنوں روپڑ میں دریائے ستلج سے نہر سرہند کی کھدائی ہو رہی تھی۔ نانا جی کی اراضی نہر کی کھدائی میں ضم ہو گئی، یعنی اسی کی کھدائی میں شامل ہو گئی۔ روپڑ میں انگریز حاکم کے دفتر سے ایسی زمینوں کے معاوضے دیے جا رہے تھے۔ جو زمین نہر کی کھدائی میں شامل ہو گئی اس کے بدلے میں پیسے دیے جا رہے تھے۔ نانا جی 2-3 بار معاوضے کی تلاش میں شہر گئے، لیکن سیدھے آدمی تھے، کبھی اتنا بھی معلوم نہ کر سکے کہ انگریز کا دفتر کہاں ہے اور معاوضہ وصول کرنے کے لیے کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ انجام کار صبر و شکر کر کے بیٹھ گئے اور نہر کی کھدائی کی مزدوری کرنے لگے۔ انہی دنوں پرچہ لگا کہ بار میں کالونی کھل گئی ہے اور نئے آباد کاروں کو مفت زمین مل رہی ہے۔ نانا جی اپنی بیوی، 2 ننھے بیٹوں اور ایک بیٹی کا کنبہ ساتھ لے کر لائل پور روانہ ہو گئے۔ سواری کی توفیق نہ تھی، اس لیے پا پیادہ چل کھڑے ہوئے، یعنی پیدل ہی چلے گئے۔ راستے میں محنت مزدوری کر کے پیٹ پالتے۔ نانا جی جگہ بہ جگہ کلی کا کام کر لیتے، یعنی سامان اٹھانے کا، اور کسی ٹال پر لکڑیاں چیر دیتے۔ نانی اور اماں جی کسی کا سوت کاٹ دیتیں یا مکانوں کے فرش اور دیواریں لیپ دیتیں۔ سوت کاٹنا یعنی روئی یا ریشے کو کاٹ کر دھاگا بنانا۔ لائل پور کا صحیح راستہ کسی کو نہ آتا تھا، جگہ جگہ بھٹکتے تھے اور پوچھ پوچھ کر دنوں کی منزل ہفتوں میں طے کرتے تھے۔ سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، اس عبارت کا خلاصہ لکھیں۔ جواب ہے، اماں جی کا آبائی وطن تحصیل روپڑ، ضلع انبالہ میں ایک گاؤں منیلا تھا۔ نانا جی کی زمین نہر سرہند کی کھدائی میں ضم ہو گئی اور وہ معاوضہ حاصل نہ کر سکے۔ مجبوراً مزدوری کرنے لگے۔ بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ لائل پور میں مفت زمین دی جا رہی ہے تو اپنے اہل خانہ کے ساتھ وہاں ہجرت کر گئے۔ راستے میں مزدوری کر کے گزارا کرتے رہے اور کئی مشکلات کے بعد منزل تک پہنچے۔ سوال نمبر 2، ماجی کا آبائی وطن کون سا تھا؟ جواب ہے، ماجی کا آبائی وطن تحصیل روپڑ، ضلع انبالہ میں ایک گاؤں منیلا تھا۔ سوال نمبر 3، ان دنوں کس نہر کی کھدائی ہو رہی تھی؟ جواب ہے، ان دنوں دریائے ستلج سے نہر سرہند کی کھدائی ہو رہی تھی۔ سوال نمبر 4، روپڑ میں کیسی زمینوں کے معاوضے انگریز حاکم کے دفتر سے دیے جاتے تھے؟ جواب ہے، ان زمینوں کے معاوضے دیے جاتے تھے جو نہر کی کھدائی میں ضم ہو گئی تھیں۔ سوال نمبر 5، نانا جی زمینوں کا معاوضہ لیے بغیر صبر و شکر کر کے کیوں بیٹھ گئے؟ جواب ہے، نانا جی سیدھے آدمی تھے، کبھی اتنا بھی معلوم نہ کر سکے کہ انگریز کا دفتر کہاں ہے اور معاوضہ وصول کرنے کے لیے کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ انجام کار صبر و شکر کر کے بیٹھ گئے۔ سوال نمبر 6، انہی دنوں کیا پرچہ لگا؟ جواب ہے، انہی دنوں پرچہ لگا کہ بار میں کالونی کھل گئی ہے اور نئے آباد کاروں کو مفت زمین مل رہی ہے۔ سوال نمبر 7، نانا جی کس کس کو لے کر فیصل آباد روانہ ہو گئے؟ جواب ہے، نانا جی اپنی بیوی، 2 ننھے بیٹوں اور ایک بیٹی کو لے کر فیصل آباد یعنی لائل پور روانہ ہو گئے۔ سوال نمبر 8، نانا جی کس طرح اپنا گزر بسر کرتے رہے؟ جواب ہے، نانا جی جگہ بہ جگہ کلی کا کام کر لیتے یا کسی ٹال پر لکڑیاں چیر دیتے۔ نانی اور اماں جی کسی کا سوت کاٹ دیتیں یا مکانوں کے فرش اور دیواریں لیپ دیتیں۔ سوال نمبر 9، اس عبارت کا مرکزی خیال لکھیں۔ جواب ہے، اس عبارت کا مرکزی خیال ہجرت، مشکلات کے باوجود حوصلہ اور محنت کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ نانا جی نے مشکلات کا سامنا صبر و استقامت سے کیا اور بہتر زندگی کی تلاش میں ہجرت کی۔ سوال نمبر 4، کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ کو اس کے اسلوب اور بیان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس خاص مقصد کے لیے پڑھیں کہ آپ کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ دونوں کرداروں کے متعلق اپنی رائے تحریری صورت میں پیش کر سکیں۔
जवाब है, कलीम एक अच्छे घर से ताल्लुक़ रखता था और शेर व शायरी में भी बुलंद मकाम था। एक दिन अपने बाप को नाराज़ करके बगैर कुछ खाए पिए घर से चला जाता है। इसका करीबी दोस्त मिर्ज़ा ज़ाहिरदार भी इसकी कोई मदद नहीं करता। कलीम भूखा रहकर मस्जिद में रात बसर करता है। अगले दिन उसे चोर समझकर कोतवाल के पास पहुंचा दिया जाता है और आखिर में बाप ही की सिफारिश पर रिहाई पाता है। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग ज़ाहिरी तौर पर कुछ और बातिन में कुछ और था। इसने अपने ऊपर झूठ का लबादा ओढ़ रखा था और अपने आप को जमादार साहब का बेटा और वारिस बताता था और जाहिर करता था कि वो साहिबे जायदाद और अमीर शख्स है, जबकि वो बांके का बेटा था और बहुत गरीब आदमी था। जमादार साहब के मकान के पिछवाड़े ओपलों की टाल के बराबर एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था। सवाल नंबर 5, सबक कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग के अलावा आपने शामिल निसाब अफसाना भेड़िया का मुताला किया। दोनों अदब पारों की गर्ज़ ग़ायत और साख्त को पेश नज़र रखते हुए इनका मुनासिब और मुहतात मुआजना करें। दोनों अदब पारों की असरी तनाजुर में अहमियत पर राय दें। मुसन्निफ़ीन के अंदाज़े बयां को समझें और अपने अल्फाज में तबसरे की सूरत में तहरीर करें। मुआजना पढ़ते हैं। सबक कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग मौलवी नज़ीर अहमद के नावल तौबतन नसूह से लिया गया है, जो कि एक इस्लाही नावल है। इस सबक में मुसन्निफ़ कलीम के राह रास्त पर आने की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि वालिदैन औलाद के खैर ख्वाह होते हैं और वालिदैन का नाफरमान दुनिया और आखिरत में ज़लील ख़ार होता है। जबकि भेड़िया एक नफ्सियाती अफसाना है। इसमें अलामतों का इस्तेमाल किया गया है और बताया गया है कि इंसान जितना ज़्यादा डर को अपने ऊपर हावी करता है वो उतना ही बढ़ता चला जाता है, लेकिन अगर इंसान हिम्मत और शऊर का मुजाहिरा करे तो वो हर तरह के खौफ और जबर से निजात हासिल कर सकता है। सवाल नंबर 2, दोनों अदब पारों की असरी तनाजुर में अहमियत पर राय दें। जवाब है, कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग असरी मौशरती रवैयों और गलत फहमियों पर तनकीदी नज़र डालता है। ये कहानी नौजवानों को ये सबक देती है कि हमें वालिदैन का कहना मानना चाहिए। जो बच्चे वालिदैन से नाराज़ होकर घर से निकल जाते हैं, इन्हें बदनामी और रुसवाई के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। और सबक भेड़िया फ़र्द की दाखिली जद्दोजहद, आज़ादी की ख्वाहिश और जदीद ज़िंदगी की पेचीदगियों को उजागर करता है। इस कहानी में बताया गया है कि इंसान अपनी जबलत से किस तरह लड़ता है और कैसे वो खौफ और वहशत से निमटता है। सवाल नंबर 3, मुसन्निफ़ीन के अंदाज़े बयान को समझें और अपने अल्फाज में तबसरे की सूरत में तहरीर करें। जवाब है, कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग में मुसन्निफ़ मौलवी नज़ीर अहमद ने किरदारों की नफ्सियात और इनके जज्बात को बड़ी महारत से बयान किया है। कहानी की तरतीब और इनकी आपस की बातचीत ने किरदारों की हकीकत और इनकी जद्दोजहद को मजबूत तरीके से पेश किया है। इसमें ज़बान का इस्तेमाल बहुत सादा मगर गहरा है, जिससे कहानी की तासीर में इजाफ़ा होता है। भेड़िया में मुसन्निफ़ फ़ारूक सरवर ने अलामती और गहरे जज्बाती मनाजिर के ज़रिए इंसान की अंदरूनी कशमकश और आज़ादी की तलाश को बयान किया है। मुसन्निफ़ ने खौफ और इंसान की जबलत को बड़ी कामयाबी से पेश किया है, जिससे पढ़ने वाले पर एक गहरा असर होता है। दोनों अदब पारों के मुतलिक साथी तलबा के सामने तबसरा करते हुए दर्ज झैल नकात पेश नज़र रखें। सवाल नंबर 1, मौलवी नज़ीर अहमद ने कलीम के किरदार के ज़रिए नौजवान नस्ल को क्या नसीहत की है? जवाब है, मौलवी नज़ीर अहमद ने कलीम के किरदार के ज़रिए नौजवान नस्ल को नसीहत की है कि हमें वालिदैन का कहना मानना चाहिए, इनको नाराज़ नहीं करना चाहिए। जो बच्चे अपने वालिदैन से नाराज़ होकर घर से निकल जाते हैं, इन्हें बदनामी और रुसवाई के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। सवाल नंबर 2, ज़ाहिरदार बेग जैसे लोग हमारी ज़िंदगी और माशरे में क्या किरदार अदा करते हैं? जवाब है, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग जैसे लोग ज़ाहिरी तौर पर कुछ और बातिन में कुछ और होते हैं। उन्होंने अपने ऊपर झूठ का लिबादा ओढ़ रखा होता है। ये लोग माशरे में सबक आमूज़ किरदार अदा करते हैं। सवाल नंबर 3, अफसाना भेड़िया में मुसन्निफ़ किस खौफ का शिकार है?
जवाब है, अफसाना भेड़िया में मुसन्निफ इस खौफ का शिकार होता है कि अगर मैं दरख्त से नीचे उतरा तो भेड़िया मुझे खा जाएगा। सवाल नंबर 4, अफसाने का मरकजी किरदार भेड़िया किस अलामत के तौर पर इस्तेमाल हुआ है? जवाब है, अफसाने का मरकजी किरदार भेड़िया डर और खौफ की अलामत के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। सवाल नंबर 7, आज से 100-150 साल कबल उर्दू अल्फाज का इमला ऐसा नहीं था जैसा कि आज मुस्तमिल है, यानी तहरीर में शामिल है। यानी आज बहुत से ऐसे अल्फाज को तोड़कर लिखा जाता है जिन्हें माजी में इकट्ठा लिखना मायूब नहीं समझा जाता था। मसलन दर्ज झैल इक़्तिबासात मुलाहिज़ा करें। कलीम यही जानता था कि जमादार का तमाम तर काम मिर्ज़ा को मिला और वो जमादार की महल सरा को मिर्ज़ा की महल सरा और जमादार के दीवान खाने को मिर्ज़ा का दीवान खाना समझता था। महल सरा की देवड़ी पर जा मौजूद हुआ, यानी पहुंच गया। बार बार के पुकारने और कुंडी खड़काने से दो लौंडियां चराग लिए हुए अंदर से निकलीं। कलीम, जाओ मिर्ज़ा को भेज दो। अच्छा, इस इबारत में महल सरा को तोड़कर लिखा गया है, जबकि पहले महल सरा को जोड़कर लिखा जाता था। इसी तरह दीवान खाने को भी जोड़कर लिखा जाता था, जबकि अब अलग करके तोड़कर लिखा जाता है। इसी तरह भेज दो, आप देखें यहाँ पर जोड़कर लिखा गया है जबकि इबारत में अलहदा लिखा गया है, यानी पहले जोड़कर लिखा जाता था, अब इसको तोड़कर अलग करके लिखा जाता है। इसी तरह नीचे कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, हम उनको अलहदा करके लिखेंगे। जैसे है मना ले जाएं, दीजिए, भेज दीजिए, कर देंगी, क्योंकि। क्योंकि दोनों तरह से ठीक है, जोड़कर लिखा हुआ भी सही है, आप अलहदा भी लिख सकते हैं। कह दूंगा, लिए। लिए भी दोनों तरह से ठीक है, आप हमज़ा भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। बेचारे, भूख। भूख यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, उसमें दो चश्मी है नहीं आता, सिर्फ काफ आता है। और बनकर। इसी तरह नीचे एक इबारत दी गई है, हम साथ इबारत पढ़ते हैं और अल्फाज की दुरुस्तगी भी करते हैं। मुसाफिर ने चलते चलते एक आदमी को मुखातिब किया, सुनिए, क्या आप मुझे मुर्गियों की दुकान का पता बता सकते हैं? मुझे वहाँ से अंडा ख़रीदना है। उस आदमी ने मुसाफिर की रहनुमाई करते हुए बताया, इस गली के नुक्कड़ पर एक कमरा बना हुआ है, वही असल में मुर्गियों की दुकान है, हम सब वहीं से अंडे खरीदते हैं। सुनिए में हमज़ा नहीं आता, सिर्फ सीन नून ये बढ़िए सुनिए। दुकान में वाव नहीं आता, दाल के ऊपर पेश आती है। और अंडा में है नहीं आता, आखिर में अलिफ आता है। और है, हुए, हम और वहीं, इन सब में दो चश्मी है नहीं आती, बल्कि है की आदि अशकाल इस्तेमाल होती है। ज़ुमाइनी अल्फाज। ज़ुमाइनी अल्फाज ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका इमला और तलफ़ुज़ तो एक जैसा होता है, लेकिन उनके मायने मुख्तलिफ होते हैं या उनके एक से ज़्यादा मायने होते हैं। जैसे लफ्ज़ है कान। एक कान होता है जिस्म का हिस्सा और दूसरा कान होता है जहाँ से मादनियात निकाली जाती हैं। मेरे कान में दर्द है। और कान का दूसरा जुमला है, कोयले की कान में मजदूर काम करते हैं। दूसरा लफ्ज़ है हार। एक हार होता है शिकस्त और दूसरी हार होता है माला। पाकिस्तान मैच हार गया। मैंने अपनी बहन को सालगिरह पर सोने का हार तोहफे में दिया। अर्ज। एक अर्ज होता है चौड़ाई और दूसरा अर्ज होता है इल्तजा करना, दरख्वास्त करना। कपड़े का अर्ज 1 फुट है और इसका दूसरा जुमला है, वकील ने अदालत में अपना मौक़िफ़ अर्ज किया। कलम। एक कलम होता है लिखने वाला आला और दूसरा कलम होता है पौधे की शाख। मैंने कलम से लिखा। दूसरा जुमला है, मैंने बाग से गुलाब की कलम तोड़कर गमले में लगाई। मगरिब। एक मगरिब हम कहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ को और दूसरा मगरिब है नमाज। मगरिब ने इस्लामी मुल्कों के साथ अच्छा सलूक किया। नमाज मगरिब का आगाज़ सूरज के ग़रूब होते ही शुरू हो जाता है। लगन। एक लगन कहते हैं बर्तन को। सारा पानी एक लगन में उंडेल दो। और दूसरा लगन कहते हैं हम मेहनत को, शौक़ को, जज्बे को। कामयाबी के लिए मेहनत और लगन बहुत ज़रूरी है। आब। एक आब कहते हैं पानी को। थर एक आबोगया इलाका है और दूसरा आब हम कहते हैं चमक धमक को। हीरे अपनी आबोताब की वजह से कीमती समझे जाते हैं। माल्टा। एक माल्टा होता है फल। अहमद ने एक माल्टा ख़रीदा और दूसरा माल्टा है मुल्क का नाम। माल्टा सयाहत के लिए बेहतरीन मुल्क है।
सोना एक सोना होता है कीमती धात। सोना एक कीमती धात है और दूसरा सोना होता है आराम। ठीक है, रात को वक्त पर सोना सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। सवाल नंबर 9, डिप्टी नज़ीर अहमद ने उर्दू का अवलिन नावल मरातुल अरूस लिखा। आप इस नावल का मुताला करके इसके अहम किरदारों की फ़हरिस्त मुरतब करें और इससे एक चार्ट बनाकर जमात के कमरे में आवेज़ा करें। अच्छा जी, अहम किरदारों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। असगरी असगरी जो थी वो एक सलीकामंद, होशियार, हुनरमंद खातून थी और अकबरी जो थी वो बदमिजाज, लापरवाह और बदसलीका थी। उसके अलावा मामा अज़मत थी जो एक चालाक नौकरानी थी। दूर अंदेश खान ये असगरी अकबरी के वालिद थे और खैर अंदेश खान ये असगरी अकबरी की वालदा थी। मोहम्मद आकिल अकबरी के शोहर थे जो नरम मिजाज और शरीफ थे। मोहम्मद कामिल असगरी के शोहर थे और ये तालीम याफ्ता और मेहनती थे। महमूदा असगरी की नंद थी जो सादा और मासूम मिजाज की थी और असगरी की सास जो थी वो रवायती घरेलू खातून थी, सादा और नेक दिल थी और अकबरी की जो सास थी वो सख्त मिजाज और रवायती खातून थी। इनके अलावा सेठ हज़ारी मिल, तमाशा खानम, हसन आराई, जमाल आरा, शाह ज़मानी बेगम, सुल्तानी बेगम, सुफन, जेम्स साहब और कुटनी, ये भी कुछ किरदार थे जो नावल में शामिल थे।